ये सर सर ट्रेन में तो नहीं बैठ के जा रहे? Hello, dear friends, can you listen me? सर Okay, we had been doing the 1 by epsilon naught into Q1, Q2, Q3, and so on. This is equal to the 1 by epsilon naught into total amount of the charge. So you can see that the total flux is equal to the total amount of charge into 1 by epsilon naught. Means if you are having n charges inside a closed surface, then the result is same, means Q by epsilon naught. So you may find that the results are always same whenever we are having n number of charges inside a closed surface. So dear cadets, do you feel any doubt here? If you are having any question, you may ask, please. Bilal Qiyam, do you have any question? Tala Afzal, Umar Khan, any questions here? No, sir. Okay. Now our next question is, so we have got the basic concepts of these two questions, and now question 5. Explain the concept of electric potential. Derive an expression for electric potential at a field point due to a source charge. So this question is at page 31. Its answer is at page 31. Page 31, and the topic is electric potential. Energy and potential due to a point charge. This is the topic. You have to prepare whole of this topic. And what is important? The main mathematical statements and diagram. And at last, you will be having the definition if you find any definition. Here is no definition, so there is no need for that. So derivation and diagram are important. So you have to write whole of this topic. There is nothing too much difficulty in this topic. It is relatively more easy, but you have to do it. So on the page 31, electric potential, energy and potential due to a point charge.
Now, question 6 is describe the construction of capacitor and derive an expression for the energy stored in the capacitor. Construction of capacitor is written at page 40 and 41. Go to page 40 and 41. Here is the diagram. You have to look into the diagram. This is the main construction. Only diagram and a bit statement. यानी इंग्लिश में कुछ भी आप जरा थोड़ा सा लिख लें, ठीक है, कुछ सारा नहीं लिखना, थोड़े से बस हल्के फुल्के इसी डायग्राम के आपने हल्की फुल्की सी एक्सप्लेनेशन दे देनी है. This is the construction, and then the other question has been asked, and what is that? The energy stored in a capacitor, page 47. So for energy stored in a capacitor, page 47, you have to do the complete derivation. Complete derivation. ये आपने इसकी कंप्लीट डेरिवेशन करनी है. तो इसमें ये जो कुछ भी इसके जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ये अपनी तरफ से आप बना लें, ठीक है. जो जो आप डेरिवेशंस करते हैं इसमें आपने बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है. ये जो यहाँ पर जितने इंग्लिश लैंग्वेज में जो कुछ भी लिखा हुआ है आप अपनी तरफ से बना लें, इसको अपने लिहाज से आप लिख लें. देयर इज नो प्रॉब्लम, बट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मस्ट बी सेम. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है. तो आपके मार्क्स इंशाल्लाह कंप्लीट मिलेंगे इफ यू आर डूइंग द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस. I hope you are understanding. Yes, sir. Okay. Now the next question is question 8. Explain the phenomenon of electric polarization. Discuss how the phenomenon of polarization account for the increase in capacitance of a capacitor when instead of air, dielectric is inserted between its plates. अब आपने ये चीज बतानी है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या चीज है और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में इसकी कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर की किस तरह से इंक्रीज करती है जब एयर नहीं है उसके दरमियान. मींस के एयर या वैक्यूम नहीं है बल्कि कोई सब्सटेंस आपने रखा हुआ है. फॉर एग्जांपल यू हैव पुट अ पेपर और ग्लास और एनी अदर थिंग. तो उसमें फिर क्या होगा कि कैपेसिटेंस पर उसका क्या असर आएगा. So this is
on page 43, 44. सर Yes. सर Hello. No sound. नहीं ये लेक्चर रिकॉर्ड जो आप बातें बोल रहे हैं रिकॉर्ड नहीं हो सकती जूम ऐप पे। हो रही है नहीं रिकॉर्ड? क्या मसला है? नहीं फिर हम बाद में सुन लेना, ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम बाद में सुन ले आपका लेक्चर। जी बच्चे आप सुन सकते हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है। इट इज तो बीइंग रिकॉर्ड रिकॉर्डेड। तो आप भेज देंगे रिकॉर्डिंग? जी जी इंशाल्लाह। ये वीडियो रिकॉर्डिंग है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग है? बहुत। ओके सर, थैंक ओके। यू। आपसे ये रिकॉर्ड नहीं होगा इसलिए कि क्योंकि मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, एक ही जगह पे रिकॉर्ड हो सकता है ये, दैट्स वाई आपसे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, बस आप रहने दे, फिर हम खुद कर लेते हैं ना सर। चले नहीं ये मर्जी है आप। रिकॉर्डिंग इसकी चल रही है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है ओके सर। हाँ जी ओके। फॉर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के लिए आपके पास है जी पेज नंबर 43 एंड 44 एंड 45। इसमें बच्चों you have to describe in your own wordings. But you have to make the proper diagram. And इसकी एक डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन ऑन पेज 45। ये आपने वर्ड टू वर्ड याद करना। मीन्स के मैंने आपको जहां पे कहा है कि आप अपनी वर्डिंग में करें तो वो चीजें आप कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो है आपको वर्ड टू वर्ड करनी है पेज 45 वाली। और फिर एक इक्वेशन है पेज 45 पे, वो आपने लिखनी है। ये आप करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द फुल मार्क्स। Any doubt here? Okay. एक तो ये हो गया, दूसरा उसके साथ एक और भी क्वेश्चन है। Electric polarization, discuss how the phenomena of electric polarization account for the increase in capacitance of a capacitor when instead of air dielectric is inserted between its plates. डाइलेक्ट्रिक जब आप बीच में रखते हैं फिर उसका क्या होता है, कैपेसिटेंस किस तरह से इंक्रीज करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्वेश्चन। खैर मैं जरा देखता हूँ अगर आपके ये सिलेबस में उस तरह से मौजूद है।
ओके बच्चों, बस यही आपने टॉपिक कंप्लीट बस लिखना है, नथिंग अदर। तो ये आपके लिए इजी हो गया। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, give the diagram and mathematical expression for growth and decay of charge on capacitor. So you have to look into the page 48, 49. पेज 48 और 49 को आपने देखना है। For charging and discharging of capacitor, you have to look into the page 49. For charging and discharging of a capacitor, see page 48, 49. ये आप जो है ना, इस पे आपको मिल जाएगा आंसर, इसको कंप्लीट आपको मिलेगा। आप ये इसको रीडिंग करें बस, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस द डायग्राम एंड इसकी एक इक्वेशन है, इसको अच्छी तरह से बना लें तो इट विल बी बेटर फॉर यू। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन हियर? नो क्वेश्चन? ओके, now we'll be looking into the conceptual. conceptual में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, where dear cadets, सर आप तो खामोश ही हो गए हैं। no, I'm not silent. Okay, so we have to look into the conceptual questions. Our first conceptual question, which is included in our course, and that is the electric potential is constant through a given region of space. Is the electric field zero or non-zero in this region? Explain. तो बात ये हो रही है बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक कांस्टेंट है एक जगह पर। तो अब क्या सिचुएशन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, एक खास रीजन है स्पेस का, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, यानी चेंज नहीं हो रहा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है या नॉन जीरो है उस रीजन में, ये अब हमने देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या सिचुएशन है, ये आपने पहले भी कई दफा ये क्वेश्चन पढ़ा है और इसको याद भी किया है, लेकिन मे भी कि शायद आपको ये चीज समझ ना आई हो कि ये कहानी क्या है इसकी। तो इसको जरा देखते हैं।
एक्चुअली बात यह है कि हमारे पास था एक फार्मूला था. व्हाट इज दैट फार्मूला? वो है जी E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R. We had this formula. अब डेल्टा का क्या मतलब है? डेल्टा मीन्स चेंज, यानी चेंज इन पोटेंशियल. डेल्टा V मीन्स चेंज इन पोटेंशियल. तो यहां पर आप देखते हो electric potential is constant through a given region of space. एक खास स्पेस का हिस्सा है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है. ये कांस्टेंट हमने कहा. तो कांस्टेंट का क्या मतलब है कि देयर इज नो चेंज, उसमें चेंज नहीं आ रही है. जब चेंज नहीं आ रही तो डेल्टा V मींस डेल्टा पोटेंशियल दैट विल बी जीरो. यहां पर क्या चीज हो जाएगी? डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो. तो अगर आप डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो लगाते हो फिर क्या होगा? E इज इक्वल टू माइनस जीरो बाय डेल्टा R विच इज इक्वल टू माइनस जीरो. जीरो बाय समथिंग क्या होता है? जीरो. माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो जीरो. तो हम क्या कहेंगे? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. ये इसकी मेन थीम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रीजन में जीरो होगा. व्हाई? बिकॉज change in electric potential is zero, therefore electric field is also zero. So this is the answer for that. Next is question 3. Question 3 says that because question 2 is not included in our course, so we'll be moving toward the question 3. Question 3 says, what is the relationship between voltage and energy? Voltage and energy के दरमियान क्या ताल्लुक है? और फिर क्या है कि more precisely, what is the relationship between potential difference and electric potential energy? तो इनके दरमियान मीन्स के दो चीजें आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी या फिर वोल्टेज एंड एनर्जी. इनके दरमियान फर्क क्या है? We have two things. एक आ गई जी वोल्टेज एंड दूसरी है जी एनर्जी, या फिर वोल्टेज को आप क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी इसका आप नाम देते होते हैं. एंड एनर्जी, एनर्जी को आप कह सकते हैं, यू कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस? एक्चुअली ये दोनों ही तो बहुत एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड क्वांटिटीज. तो कभी कभी तो हम इन दोनों को मिक्स भी कर जाते. तो यही हम जरा चीज देखते हैं कि जी क्या वजह है कि हम इनको मिक्स भी कर जाते हैं और कई, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट क्वांटिटीज भी हैं. तो इसकी वजह क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज जो है, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक और voltage or electric potential is actually the amount of energy applied or gained or lost by a unit charge. एक चार्ज पर यूजुअली पॉजिटिव ये होता पॉजिटिव चार्ज, इस पर जो टोटल एनर्जी लगती है एक यूनिट चार्ज पर, दैट इज व्हाट इज दैट? दैट इज द वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब दूसरी जो चीज आ गई एनर्जी। एनर्जी क्या चीज है? द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ऑल चार्जेस, जितने भी चार्जेस उन पर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो क्या चीज होगी? एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, इज कॉल्ड एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दूसरी क्या चीज आ गई? इनके यूनिट्स। तो ये क्या है? द यूनिट ऑफ वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। वोल्ट है रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V, and 1 volt is equal to 1 joule of energy per unit charge, usually coulombs. Charge per energy per coulomb is called volt. ये है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जबकि ओनली एनर्जी जो है दैट इज मेजर्ड इन जूल्स ओनली। It's SI unit, the unit of energy is क्या है? joule, represented by capital J. So that is the difference. I hope you understand it. Any doubt, dear cadets? No sir, all clear. Okay, good. Question 4. Voltages are always measured between 2 points. Why? This is question 4. और इसमें ये कहा जा रहा है कि वोल्टेजेस को हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान ही मेजर किया जाता है। इसकी वजह क्या है? तो इसकी क्या वजह हो सकती है? एक्चुअली वोल्टेज का हमने कहा यही था कि ये एनर्जी का डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के दरमियान। तो जब तक 2 पॉइंट्स नहीं होंगे तो हम कैसे उसको मेजर करेंगे उस डिफरेंस को? डिफरेंस तभी मेजर होता है जब हमारे पास 2 चीजें होती हैं। एक चीज का तो डिफरेंस हम नहीं मेजर कर सकते क्योंकि उसका अपने आप से डिफरेंस हम फिर करते रहेंगे। तो डिफरेंस हमेशा क्या चीज है? जब हम कहते हैं फर्क है 2 चीजों के दरमियान, तो वो हमेशा 2 चीजों के दरमियान होता है फर्क, एक चीज का नहीं होता। तो ये क्या वोल्टेज क्या होता है? एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है। वोल्टेज इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस, so it is always measured between 2 points. तो इसकी वजह क्या हो गई है? ये रिलेटिव क्वांटिटी,
वोल्टेज इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, एक दूसरे के साथ ये रिलेटेड है। तो हम जरा देखते हैं, क्योंकि दो मुख्तलिफ चीजों के दरमियान, ये दो मुख्तलिफ वोल्टेजेस एनर्जीज के दरमियान ये डिफरेंस। सो वोल्टेज इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। वोल्टेज एक रिलेटिव क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई वी मेजर इट बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हम इसकी जो है ना कंप्लीट रीजन जो है ना वो देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन अगर हम करें तो। कि वो क्या है कि जी वोल्टेज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज, it is an energy difference between any two given points, या फिर जिनको हम एंड्स कह सकते, ये दो पॉइंट्स के दरमियान ये एनर्जी डिफरेंस है। तो जब ये डिफरेंस है तो फिर क्या हो गया, सिंस इट इज अ डिफरेंस, क्योंकि ये डिफरेंस है, दैट्स व्हाई इट मस्ट बी मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये हमेशा पर दो पॉइंट्स के दरमियान ही मेजर होगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हम जरा देखते हैं कि अब ये क्या है कि जी फॉर 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि जी एक सर क्वेश्चन हमारे 4 पास करवा रहे हैं आप? ये बच्चा ये क्वेश्चन 4 करवा रहे हैं? जी हाँ, क्वेश्चन 4। और ये 2 इंक्लूड नहीं है? 2 is not included. ओके सर, प्लीज कैरी ऑन सर, थैंक यू। तो ये हो गया जी वोल्टेजेस आर ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इसमें क्या हो गया, फॉर 2 पॉइंट्स, लेट्स सी कि 2 पॉइंट्स कौन से हैं। 2 पॉइंट्स हैं, बी, एक ए है एक बी है। तो हम उन दोनों के दरमियान जब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा बी बी यानी फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट बी ए इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम ए टू बी। यानी आप एक चीज को ए से बी तक मूव करा के लेके जाते हैं तो उनका डिफरेंस है वो फाइनल माइनस इनिशियल आ जाए, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। Q naught means unit charge. Usually it is taken proton. So you have VB minus VA. If this is the difference, then let us say it as difference of B, means change. VB minus VA क्या चीज है? This is change. Change between B and A. So change in B is equal to ये क्या चीज है, वर्क जो है दैट इज द गेन और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। सो यू कैन से इट एज डेल्टा यू, यू मींस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। So from this equation you can see that this is the difference, and difference is always measured between 2 points. That's why we were saying it to be the difference of the 2 points. Okay, now we'll be proceeding toward the next सर ये question. V वोल्ट का सिंबल है, W किसी का सिंबल है? J? ये V Hello, no sound. No sound. W की चीज का सिंबल है? W वर्क डन। जब आप चार्ज को एक जगह से दूसरी Work जगह मूव करा रहे हैं A से B तक,
तो आपको वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो एक्चुअली वर्क जो है वो एनर्जी की सूरत में फिर जाहिर होगा। वर्क डन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए हमने डेल्टा यू यूज किया। सर ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। Yes, positive, both positive and negative can be considered, but usually conventionally we are considering positive charge, but negative charge के भी same results। ओके सर। हाँ जी, तो इसकी रीजन ये है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के आज का टाइम ऑपोजिट खत्म जरूर हो गया हैं, सर। लेकिन उनकी क्वांटिटीज सेम है। They have the same quantities. Yes, the time is over. We'll be studying next. And बच्चों आज मैं आपको 1 और 2 PM तक मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा, वो आपने करनी है, टेस्ट है, ठीक है। वो आपने फिर शाम को जन सबमिट कराना है, ठीक है। छोटा सा होगा, ज्यादा नहीं होगा, आप परेशान नहीं हो, ठीक है। छोटा सा होगा, टेस्ट होगा, वो आपने फिर शाम को जो है ना वो आपने सबमिट कराना है, ठीक है। ओके बच्चों, आपके साथ शेड्यूल मैंने शेयर कर दिया है, प्लीज उसको देख लें। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास जो है ना आफ्टर 5 मिनट्स मेरे ख्याल से स्टार्ट, ठीक है बच्चों। एनी मोर थिंग, एनीथिंग टू डिस्कस? हेलो, एनीथिंग टू डिस्कस? ओके बच्चों, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।